السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ محترم و معزز و مکرم حاضرین و ناظرین اکرام، بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہو پائے ہیں۔ یقیناً ایک پاک بزم اور مجلس ہے، اور وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی کتاب کی بیان ہو، تو یقین جانے کہ دینی مجالس اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دینی مجالس میں ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والے ہفتے میں درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 140 تک کی بات مکمل ہے۔ آگے بھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ غزوہ احد کے لیے اسپیشل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے غزوہ احد کے بارے میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جو سن 2 ہجری میں لڑی گئی تھی، رمضان کے مہینے میں، 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوئی، جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ یہ سن 3 ہجری میں اور شوال کے مہینے میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں نہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور نہ ہی شکست ہوئی، جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں ٹائی یعنی ڈرو ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انداز بیان کیا ہے غزوہ احد میں، وہ انداز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان پستہ حالی کے شکار تھے۔ اور یہ پستہ حالی کیوں پیدا ہوئی، تو اس کے چند وجوہات آیات با آیات آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اول یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں وہ تیراندازوں کو مقرر کیا تھا، قریب 50 تیرانداز تھے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب تک حکم ثانی نہ آئے وہ یہاں سے ہٹے گا۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے بارے میں کہ کافروں کی جماعت میں ایک بہت اہم شخصیت کے خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ چیز محسوس کیا غزوہ احد کے اندر کہ ہم مسلمانوں سے ہار جائیں گے، جیسے بدر میں ہارے۔ تو انہیں کی ترکیب تھی کہ ہم واپس پلٹے ایسے جیسے کہ ان کو لگے کہ ہم دھوم دبا کے آ گئے، کیونکہ تیرانداز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر مقرر کیے تھے، اس جتنے تیرانداز تھے وہاں پہ، ان کو نیچے والے دشمن جو صاف سمجھ میں آ رہے تھے اور بآسانی تیر چلا رہے تھے۔ اسی کو چکمہ دینے کے لیے خالد بن ولید نے ایک فیصلہ اپنایا، اور ایسا لگا، حقیقت میں مسلمانوں کو لگا بھی کہ ہم اب جنگ جیت چکے ہیں اور دشمن دھول دبا کے بھاگ گئے۔ لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ جنگ میں جو ساز سامان دشمنوں کے حاصل ہوتے اس کو مال غنیمت ہے۔ تو ایک وجوہات یہ بھی بیان کی گئی کہ مال غنیمت کی لالچ میں مسلمان ہار گئے، ہے نا۔ 50 تیرانداز جو مقرر تھے، اس میں سے بعض نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، چلو مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا کہ جب تک میرا حکم نہیں آئے گا کوئی یہاں سے ہٹے گا نہیں، چاہے جنگ ہم جیت گئے چاہے جنگ ہم ہار گئے۔ یہاں پہ تو رائے ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے۔ اور تو یہی تھا نا کہ جب تک میں حکم نہ دوں کوئی یہاں سے ہٹے گا نہیں۔ لیکن صحابہ نے 2 رائے دی، اور دونوں رائے صحیح بھی تھی اپنی جگہ پہ۔ جنگ جیت چکے تب رہنے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس سے بہتر افضل یہ تھا کہ نہیں،
नबी ने कहा है कि मेरा हुक्म आएगा तो आएगा, नबी को हो सकता है भूल गया हूँ, हमको हुक्म देना, लेकिन जरूर हुक्म देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है आयत नंबर 141 141 सूरह आली इमरान, वलियुमहिसल्लाहु लज़ीना आमनू व यमहकल काफिरीन। और ये इस वजह से था कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। हकीकत में यही बात थी कि गज़वा उहद के मौके पर जब मशवरा किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने उहद पे पाँव डाल दिया है, यानी अचानक वो पहुंच चुके हैं, यही तो पहुंचना चाह रहे आएंगे। तो आपको मालूम है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी कि आप मशवरा करें। सहाबा से मशवरा किया कि वो तो आ चुके हैं, तो हम मदीने के अंदर रहकर जंग लड़े या मदीने के बाहर जाकर। अब्दुल्लाह इब्न उबई का मशवरा था कि नहीं, मदीने के अंदर हम रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, उनको आने दो। उसका मकसद ये था कि जब काफिर मदीने पे हमला करेंगे, पीछे से हम भी हमला कर देंगे, तो हम तो मुनाफिक हैं, तो मुसलमान है नहीं, है ना। आप देखेंगे जंग के माहौल में कि जब दो फौज आमने सामने होती हैं तो एक दूसरे की हरीफ होती है, कट्टर हरीफ जिसको कहते हैं, अगेंस्ट। उधर वो फौज, इधर ये फौज है, तो ये फौज उधर फोकस की हुई है और ये फौज सामने उधर फोकस की हुई है। लेकिन जो गद्दार होंगे हमारे फौज के पीछे होंगे, अगर वो भी हमला कर दे, इधर से तो हमला हो ही रहा है, इधर से भी हमला हो गया, रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए वही नहीं मशवरा दिया मदीने में रहकर हम जंग लड़ते हैं। लेकिन बहुत किबार सहाबा जो थे, बड़े बड़े सहाबा, उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, हम अगर अंदर आके लड़ेंगे तो फिर क्या पता हो, जहां वो लड़ना चाहते वहीं हम लड़ें, हमको अंदर आने से रोके, सरदरते मदीना में आने से रोके। अल्लाह ने कहा इसीलिए जंग भी हुई, वलियुमहिसल्लाहु लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला मोमिनों को अलग कर दे, तो उनमें से कौन मोमिन है वो अलग हो जाए। वयमहकल काफिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है क्या, काफिरों को मिटा दे, निष्ठ कर दे। इसलिए ये जंग जो है जंग उहद लड़ी गई। आगे अल्लाह ताला बयान कर रहा है आयत नंबर 142 142 में, अल्लाह कह रहा है अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि तुम में से कौन जिहाद करने वाले हैं, तुम में से कौन सब्र करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक बात अल्लाह ताला ने बड़ी बेहतरीन बात बयान फरमाई और बहुत दिल को छू लेने वाली बात है। अल्लाह मुसलमानों ही से कह रहा है, किसी और से नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, अम हसीबतुम, क्या तुम ये गुमान करते हो, ये सोचते हो, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जाहिर बात है हर मुसलमान सोचता है, कौन मुसलमान नहीं सोचेगा कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे। सोचना भी चाहिए, लेकिन सोचने के साथ साथ उस पर अमल भी करना है ना। हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ये नहीं कोशिशें नहीं करेगा दिल्ली जाएंगे। हमको यहाँ से अरब जाना है, सोच रहे हैं, लेकिन कैसे जाएंगे, सोचने से पहुंच जाएंगे नहीं, ना पहुंचेंगे। अल्लाह वही बयान करना चाहता है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल होगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जानता है मिनकुम, तुम में से कौन जिहाद करने वाले हैं, मुजाहिद, व यअलमस साबिरीन, और तुम में से कौन सब्र करने वाले। जाहिर सी बात है कि दो जो सिफात बयान होगी, जिहाद और सब्र, ये कौन करेगा, मुसलमान ही करेगा। मुसलमान जिसको अल्लाह पर ईमान है वो अल्लाह की जिहाद करेगा। मुसलमान जिसको अल्लाह पर ईमान है और कोई मुसीबत आएगी तो वो सब्र करेगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम में से कौन जिहाद करने वाला है और कौन सब्र करने वाला है। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन के बारे में डायरेक्टली बयान कर रहा है। और आपको मालूम है कि ये दर्स जब शुरू हुआ तो पहले पारे में सूरह फातिहा के बाद, उसके बाद सूरह बकरा में आने के बाद अल्लाह ताला ने उसके बाद मुनाफिकीन का तज़किरा, बहुत लंबा चौड़ा तज़किरा चला। पूरी कुरान में अगर देखा जाए तो जिस चीज़ से इंतबाह किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों से, जैसे ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सच है, जहाँ पर इन चीज़ों की तमीज़ बयान की गई है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुनाफिकीन के बारे में है। क्योंकि याद रखें कि एक जो खुला दुश्मन होता है, जैसे शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान भी कहता है कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।
यानी वो कुछ भी कह दे मानना नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन ही है। तो एक दुश्मन को तो हम पहचानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे जो हम ही में से है और हमारा दुश्मन है? उसको कैसे पहचानेंगे? वो हमारे साथ नमाज भी पढ़ रहा है, वो हमारे साथ रोजा भी रख रहा है, वो हमारे साथ हज भी कर रहा है, वो हमारे साथ दीन के सारे उसूल पर पाबंदी से अमल कर रहा है, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये हमारा दुश्मन है? ये बहुत डिफिकल्ट और मुश्किल अमर है पहचानना कि हमारे सफों में है लेकिन हमारे साथ है, हमारे खिलाफ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी निशानियां, उनकी अलामत को बयान करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बयान की है हदीस के अंदर या कुरान में जो निशानी बयान की है, हम उस निशानी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्यों बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बयान किया, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये हल्की चीज होती, आसान चीज होती तो बयान नहीं होता। जैसे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयतुल मुनाफिक सलात, मुनाफिक की 3 निशानी है ना। क्या निशानी है? इज़ा हदसा कज़ब, पहली निशानी ये है कि जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, झूठ बहुत बोलेगा, तो सच नहीं बोलेगा। जबकि हुक्म क्या हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों की बात कहो तो अच्छी बात कहो, सच्ची बात कहो, दुरुस्त बात कहो, यानी सच बात कहो। ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है कि सच बात कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इज़ा हदसा कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। अभी झूठ बोलना मुनाफिक की पहचान। हम हल्के में ले लेते, क्या वो झूठ बोल दिए? टेलीफोन आया, मोबाइल उठाया, हम नियामत में बैठे हुए हैं, हाँ इमाम साहब कहाँ है, तभी तो हम ट्रेन में, है ना। तो होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम इसको गुनाह मानते ही नहीं। ये हमारा अपना एक अड़ियल रवैया है कि हम इसको गुनाह मानते ही नहीं, झूठ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो झूठ बोला। किरामत कातिबीन मौजूद है, अच्छाई का फरिश्ता अच्छाई नोट कर लिया, बुराई का फरिश्ता बुराई नोट कर लिया। तो एक पहचान है कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, इस तरीके से जब वादा करेगा ज़क़ीदा अखलफा। मुनाफिक की पहचान क्या है? जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, ये इसकी निशानी है मुनाफिक की। कि हम आपसे कोई वादा कर ले कि हाँ इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल बेफिक्र रहे, और उसके बाद फोन ही उठाए। जब वक्त आया उस काम का, कॉल आ रहा है, आदमी मिलने आ रहा है, घर के अंदर है लेकिन घर की औरतों को बाहर कर दे रहे हैं, कह दीजिए कि बाहर गए हो, वादा कर चुके हैं, मुखालफत कर दिए, वादा के खिलाफ चले गए। अब इसके अपोजिट अगर आएंगे मुनाफिक के, तो मोमिन जब वादा करेगा तो क्या करेगा? उसको निभाएगा, वरना मोमिन वादा ही नहीं करेगा। इसीलिए वादा भी हम सोच समझ के करें। और तीसरी चीज ये है कि जब उसके पास मिला अमानत दी जाए तो खान उसमें खयानत करें। एक आदमी आया, इमाम साहब 5,000 रुपया रखिए, हम आपको बाद में आके ले जाएंगे, 15 दिन के बाद। वो जब हमसे लेने आ रहे थे पैसा, हम खा पी के खत्म, अमानत थी मेरे पास, हमने क्या कर दिया? खयानत कर दिया। तो अमानत में खयानत करने का मोमिन का काम है कि मुनाफिक का काम? जाहिर सी बात है, ये वो सिफात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। क्यों बयान किया? ताकि इस सिफत अपने अंदर ना आ सके, गलती सी भी चीजें हमारे अंदर ना आ सके। कोई भी चीज धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जंग लगता है। किसी भी इमारत को, दीमक या लकड़ी को जो दीमक खाता है, तो एक ही बार में लकड़ी कमजोर नहीं हो जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता दीमक खाते 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 वो जो मजबूत लकड़ी होती है क्या हो जाता है? कमजोर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत नंबर 142 के अंदर भी यही बात कर रहा है। एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निफाक के ताल्लुक से, और आपने बड़ी सख्त अल्फाज में बयान किया कि मुनाफिक को पहचानना है तो इशा फजर में देखो, क्योंकि मुनाफिक को ये दो नमाज बहुत भारी है ना। तो बहुत सारी चीजें बयान हुई है। अल्लाह यह कह रहा है कि अल्लाह जानता है तुम में से कौन जिहाद करने वाला है, कौन सब्र करने वाला है। यानी अगर मुनाफिक होगा तो नीयत तो अल्लाह जानता है उसकी, तो मजबूरी में तैयारी कर रहा है, हाँ में हाँ लगा रहा है, और इसी तरीके से सपोर्ट में खड़ा होकर मौके की तलाश में है कि अगर दुश्मन गालिब आ जाए तो पीछे से तो हम ये हैं, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए कहता है तुम गुमान करते हो कि जन्नत में चले जाओगे। तो इसमें 2 मैसेज है। एक मैसेज मुसलमान प्लस मुनाफिक दोनों को अल्लाह इसलिए बोलना चाह रहा है ताकि मुनाफिक समझ जाए कि ये इतना आसान नहीं है, जन्नत पाना इतना आसान नहीं है कि हम दिखावे के लिए अगर मुसलमान बन जाते हैं, उनके साथ नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदकात करते हैं, खैरात करते हैं और जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, नहीं, तो आसान नहीं है। और एक डायरेक्ट अल्लाह मुसलमानों से भी कह रहा है, दूसरा मैसेज ये है कि हम मुसलमान भी अगर सुनी पाल के नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ईमान वाले मोमिन हैं, तो हम जन्नत में चले जाएंगे। ये अल्लाह को पता है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। हमें तो गुनहगार मानना है अपने आप को, जितनी भी इबादत कर ले कम,
जितना भी रोजा रख ले कम है, जितना सदका खैरात कर दे कम है, जितने हज और उम्रे कर ले कम है। क्या समझना अपने आप को? कम है। क्यों कम है? अब देखिए अशरा मुबशरा सहाबा को, खलीफाए राशिदीन को देखिए, खुलफाए राशिदीन को, अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन चारों को अगर देख लिया जाए तो उस्मान गनी जो दमाद रसूल हैं, जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली, कब्र के पास के गुजरते तो खूब रोते थे, इतना रोते कि गाली ही देते। साहबा पूछते हैं क्या उस्मान गनी आपके सामने जन्नत जहन्नम का बयान होता है, आप नहीं रोते, कब्र के पास से गुजरते तो क्यों रोते? तो वो कहते थे कि देखो कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर ये मंजिल आसान हो गई तो नेक्स्ट जो मंजिल है वो आसान हो जाएगी। अगर कब्र में मंजिल मुश्किल हो गई तो आगे की जो मंजिल है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये कौन थे जो रो रहे थे? ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली है कि नहीं? तो सहाबी इसलिए रोते थे, जन्नती हैं, मरेंगे और जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, निकाल के अल्लाह जन्नत में पहुंचा दे। लेकिन देखिए कितना अपने आप को गुनहगार मानते थे, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हमको कोई नहीं रोक सकता जन्नत में। अगर ऐसा होता तो उस्मान गनी नहीं रोते। उसी तरीके से एक और खुलफाए राशिदीन में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी खिदमत है इस्लाम के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सोचिए कितनी बड़ी बात, एजाज है ये फख्र है कि उमर फारूक की इतनी खिदमत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आखिरी रसूल हूँ, मेरे ऊपर नबूवत का खात्मा हो गया, अब कोई नबी रसूल नहीं है। अगर कोई नबी आएगा होता तो उमर होते। वो नबी भी जन्नती हैं। अल्लाह ताला ने जो 10 सहाबा इकराम को जन्नत की खुशखबरी दी उसमें उमर फारूक भी हैं। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खलीफा बनने के बाद दूसरे खलीफा कौन बने? उमर फारूक बने। वो भी जब मरजुल मौत में गए तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा कि हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। ये कौन थे हुज़ैफा बिन यमान? राजदार नबी के सारे सीक्रेट जानते थे, सारे सीक्रेट जानते थे। कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, ये हुज़ैफा को पता रहता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक ने बुलवाया अपने बेटे से, वो गए, जी अमीरुल मोमिनीन कहिए क्या बात है। वो रोने लगे पकड़ के। तो हुज़ैफा से इतना बता दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकों की लिस्ट दी उसमें उमर है कि नहीं, उसमें उमर है कि नहीं। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जब नमाजें पढ़ लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, हज उम्रा कर लेते तो लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान ही नहीं, बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। और इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे अंदर अब तक इबादत का तकब्बुर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ये एकदम लेटेस्ट बता रहे हैं, इबादत का तकब्बुर माशरे में कुछ ना कुछ लॉन्च होते रहता है। अभी रिसेंट में जो चीज चल रही है वो है इबादत का तकब्बुर। अरे हम फजर पढ़ते तुम लोग सो जाते हैं, कहाँ था तुम? क्या अल्लाह रसूल ने कभी इस तरह का दिन फैलाया? मैंने फजर पढ़ी तुम लोग सो रहे थे, क्या तुम मन रख? सोचे जिस नबी के हम पैरोकार हैं, मानते हैं, क्या उस नबी ने इस तरह का लहजा अपनाया दाऊद दिन में? तो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है इबादत का तकब्बुर। मस्जिद बन रही है, 10,000 रुपया को चंदा देना है, 2 दिन ना दे तो मजा ही नहीं आए। 10,000 लगभग एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक सैलरी, और हाँ मतवली जाने ही कैसे? सोचिए कि कैसे हो जाए। अंदरूनी तौर पर लेन देन हो गया माशाल्लाह, उसने ताउन कर दिया, लेकिन वो आदमी हैरानी और परेशानी के आलम में 3 दिन गुजर गया, 4 दिन नहीं आ रही, कुछ जाना कैसे नहीं। 4-5 दोस्तों को चाय के लिए बुलाते, चाय के लिए चाहते, हम भी दे दिए हैं। फोन आया था मुसल्ली साहब का, बस दे। सोचिए ये इबादत का तकब्बुर है। मेरे भाई अल्लाह से डरे। रिया और रिया व शिर्क। रिया क्या है? शिर्क है। क्यों शिर्क है? इबादत खालिस अल्लाह के लिए होती है और दिखावा लोगों के लिए। और जब लोगों के दिखावे के लिए इबादत की तो शिर्क हो गया, क्योंकि इबादत का लायक सिर्फ अल्लाह ताला है। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, हम हसीब तुम अंत खुलू जन्नता, क्या तुम गुमान करते हो? मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है, क्या तुम गुमान कर बैठे हो कि तुम जन्नत में जाओगे? नहीं। वल्लम्मा यालमिल्लाहु लज़ीना जहादू मिनकुम, अल्लाह जानता है कि तुम में से कौन जिहाद करने वाला है, व यालमस साबिरीन, और कौन सब्र करने वाला है, अल्लाह जानता है। जब अल्लाह जानता है, अल्लाह ने बताया नहीं किसी को, अल्लाह ने जाहिर नहीं किया, तो हम कैसे कह दे कि हम सब्र करने वाले हैं? सोचिए, अल्लाह ने किसी का नाम दिया यहाँ पे? नहीं दिया। तो एक आदमी कैसे समझ सकता है कि हम ही मुजाहिद हैं, हम ही साबिर हैं, सब्र करने वाले हैं? मुमकिन नहीं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 143 एक
143 में कह रहा वलकद कुंतुम तमन्नाउनल मौता मिन कब्ल अन तल्कुहु, इससे पहले तुम शहादत की तमन्ना करते थे, इससे पहले तुम शहादत की तमन्ना करते थे। फकद रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून, अब तुमने इसको अपने सामने देख लिया। इस आयत करीमा का पस मंजर देखो, हुआ क्या कि ओहद में जब मुसलमान और काफिर आमने सामने मिले तो जाहिर सी बात है कि जंग का भी एक बहुत नियम और कानून और रूल होता है। यही वजह है कि एक सिविलियन का एक आर्मी में बहुत फर्क होता है। मिलिट्री का जो कानून होता है, मिलिट्री के जो राज होते हैं, मिलिट्री के जो कवानीन होते हैं, और एक सिविलियन में बहुत फर्क होता है। अब देखिए उसमें कि दुश्मनाने इस्लाम ने क्या किया, ओहद में ये अफवाह फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए। जंग चल रही थी, अभी जंग चल रही थी दो तरफ से, ये अफवाह उड़ा दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए, कत्ल कर दिए। अफवाह उड़ाने का मकसद क्या था? जब कमांडर ही मारा जा चुका है, लीडरशिप यही खत्म हो जाए तो जाहिर बात है पीछे के लोग तो फिक्र बिक्र हो जाते, होता है ना। ये तरीका उन्होंने अपनाया। जब फैल गई खबर ओहद में, मैदान में, जंग ओहद में, मैदान ओहद में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, कोई तीर चला लग गया उनको, थोड़े से सहाबा के हौसला पस्त। जाहिर बात है जब कायद कप्तानी जब इंजर्ड हो जाए तो आसान नहीं था पूरी टीम को एक साथ चलना। इसका असर हुआ और बहुत सारे सहाबा मतलब गम में, ये वो कहा जा सकता है बुज़दिली नहीं, ये लफ्ज़ नहीं, तकलीफ हुई उनको कि जिस नबी पर ईमान लाया था शुरुआती दौर था और वही नबी इंतकाल कर गए, अब हमें खोल लेके चलेगा कौन, हमारी क़यादत करेगा। लेकिन ये अफवाह थी, महज ये हकीकत नहीं था। जब सहाबा के कदम डगमगाए तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, वलकद कुंतुम तमन्नाउनल मौता मिन क़ब्ल, तुम तो इससे पहले शहीद होने की दुआ करते थे। तमन्नाउना मतलब तमन्ना करते थे, चाहत रखते थे, शौक रखते थे। तुम इससे पहले शहीद होना चाहते थे, शहादत की मौत मरना चाहते थे। अब क्या हुआ? फकद रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून, जब वो चीज तुम्हारे सामने आ गई, जंग तुम्हारे सामने आ गई, तो अब क्यों अपने पांव को तुम पीछे खींच रहे हो? ये अल्लाह ताला ने बयान किया। तुमको देख लिए, असल में इसमें ओहद में कुछ ऐसे सहाबा हैं जो जंग बदर में शामिल नहीं हुए किसी वजूहात पर, जैसे उस्मान गनी मुसलमान हो गए थे लेकिन बदर में शिरकत नहीं किया। वजह क्या थी कि हज़रत उस्मान गनी की शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से हुई, और जब जंग बदर के लिए फौज रवाना हुई बदर के मैदान में तो रुकैया की तबीयत बहुत खराब, मतलब सीरियस कंडीशन में, उनकी बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस्मान अपनी बीवी के पास आओ, ये भी जिहाद है, अपनी बीवी के पास आओ, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है, तुम वहीं रहो, हम लोग जा रहे हैं। और जंग बदर इधर मुसलमानों ने जीता, फतह हुई, मदीना में एंटर किए, पता चला कि उस्मान रुकैया को दफन करके कब्र पर हो गए। गम में बीवी रुखसत हो गई। देखिए एक नबी को अल्लाह ने कितना आजमाया, एक नबी की जिंदगी में उसकी जवान बेटी इंतकाल कर, अल्लाह के रसूल बहुत बर्दाश्त, बड़ी कुर्बानी आपने दी, नबी है, और आपकी जिंदगी में एक बाप के सामने जवान बेटा बेटी की मौत आसान नहीं है। बेटी इंतकाल कर, आज उस्मान को गैर दिलासा दिए और कहा कि जंग बदर का जो बदरी सहाबा का जो मकाम है अल्लाह के नजदीक, उसमें उस्मान तुम भी शामिल, हालांकि वो शामिल नहीं थे जंग में, इस वजह से नहीं जा सके थे। बहरहाल तो बहुत सारे ऐसे ओहद में सहाबा थे जो जंग बदर में शिरकत नहीं कर सके, बाद में उनको मौका चाहिए था कि अल्लाह मौका मिले, अल्लाह के रसूल मौका मिले, हम शहादत की मौत मरना चाहते हैं, हम शहीद होना चाहते हैं। वही बात यहाँ अल्लाह ने बयान किया, वलकद कुंतुम तमन्नाउनल मौत मिन क़ब्ल, कब्ल मतलब पहले, इससे पहले तुम शहीद होना चाहते थे, शहादत की मौत मरना चाहते थे, अन तल्कुहु फक़द रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून। अब क्या हो गया कि जब वो चीज तुम्हारे सामने आ गई तो तुम अपने पांव को डगमगा रहे हो, अपने कदम को। अब क्या हो गया? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल, अभी तो अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। अगली आयत, आयत नंबर 144, 144, अब ये आयत में अल्लाह ने बयान किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं थे मगर रसूल थे। मोहम्मद क्या थे? एक रसूल थे। कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, इनसे पहले भी बहुत से रसूल दुनिया में आए और गुजर गए। खलत मतलब गुजर गए, इंतकाल कर गए। उर्दू में बोलते हैं ना कि फलां साहब गुजर गए, मतलब दुनिया के रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। अल्लाह ने कहा कि अगर ये बात सही भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, अब आगे अल्लाह बयान कर रहा है, चलो ये तो अफवाह है, अल्लाह जानता है। अगर ये बात सही भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, तो क्या हुआ? मोहम्मद एक रसूल थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल आए और इंतकाल कर गए, तो क्या हुआ? अफा इन माता,
अगर ये मर जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करो, अपा माता माता या मुतो के माना क्या होता है? मरना, वफात पाना। अगर ये मर जाए और कुतिला या कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, इन कलब्तुम अला अकाबिकुम, तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? देखिए अल्लाह कैसे हौसला दे रहा है। ओहद की बात हो रही, ये सारी बात जंग ओहद की हो रही, ये तो महज अफवाह है। अगर ये अफवाह है, सही मान लिया जाए, अल्लाह ने भी बयान किया, माना सही है, तो क्या अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाए या कत्ल कर दिए जाए, तो तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? कि हमारा कायद ही नहीं रहा तो हम रह के क्या करेंगे, हमारा लीडर ही नहीं रहा तो हम रहकर क्या करेंगे? नहीं। आगे अल्लाह बयान करो, मैं यन कलीब अला अकिबैहि, और जो कोई भी अपनी एड़ियों के बल पलट जाए, फलई यजुर अल्लाह शै'न, तो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये कोई सोच रहा है सहाबा कि हम पीछे पलट जाएंगे तो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला जानता है किससे दीन का काम लेगा। ये अल्लाह बयान करना चाहते हैं कि कोई अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह को पता है किससे काम लेना। देखिए दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े उलमा इकराम इंतकाल कर गए, बड़े बड़े जल्लुल कद्र मुहद्दिस इमाम बुखारी इंतकाल कर गए, इमाम मुस्लिम इंतकाल कर गए। अल्लाह दिन का काम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्या दिन का काम बंद हो गया, स्टॉप हो गया? कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला को मालूम है कि किससे किस वक्त किस समय दिन का काम लेना है। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्र अदा करने वालों को ही बदला देता है। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को बदला देता है। यहाँ देखिए एक बहुत अहम बात है कि जब ये अफवाह उड़ी ओहद में, काफिरों ने उड़ा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए, कत्ल कर दिए। मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर जो खलबली मच जाए, है ना, तितिर बितिर हो जाए, घबरा जाए, उनके कदम डगमगाने लगे, हौसला पस्त हो जाए, हम जल्दी जाएंगे। अल्लाह ने आयत उतार दिया ओहद में। यही तो आयत थी कि तो इससे पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, मौत की तमन्ना करते थे कि अल्लाह की अगर मौका मिला, बदर में नहीं गए तो ओहद में जो है हम जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला शहीद हो जाएंगे। अब क्या हुआ? वो अफवाह है, हकीकत है कि फसाना है उम्मत को। अब क्या हुआ? तुम्हारे कदम क्यों डगमगा रहे, तुम क्यों पीछे हट रहे? फिर आगे अल्लाह ने बयान किया कि अगर मोहम्मद के रसूल थे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया तो दुनिया से जाना है। इससे पहले बहुत से रसूल आए, कद खलत मिन क़ब्लिर रुसूल, इससे पहले भी बहुत से रसूल आए और गुजर गए। अब देखिए जो असल बात बतलानी है, जो अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अफ़ा इन माता और कुतिला, माता और कुतिला, कुतिला मजहूल कर देगा, माता मारूफ कर देगा। कुतिला कत्ल कर दिए जाए, माता मर जाए। इसमें जो मसला बतलाने, मेरा मकसद है बताना चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात होती है कि पर्दा फरमा गए, है ना। तो अरबी के अंदर माता या मुतू के माना होता है मरना, है ना। अब इस आयत का, बल्कि इसको अगर नोट करें, सूरह आले इमरान आयत नंबर 144, इसका पस मंजर भी देखिए क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हज़रत उमर फारूक जो थे, बड़ी सहाबा को बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। सहाबा वो शख्सियत थे जो अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते। बड़ी तकलीफ हुई, अजीब सन्नाटा छा गया। हज़रत उमर फारूक ने क्या किया कि तलवार निकाल ली दुनिया से और कहे कि जो कोई ये कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए, तो मैं उसके सर को उसके तन से जुदा कर, है ना। और मदीना के गलियों में ये नारा लगाने लगे, बोलने लगे क्या ये बोलना मत कि मोहम्मद इंतकाल कर गए, तो बख्शेंगे नहीं तुमको। ये मोहब्बत का पैमाना था कि अपने महबूब को कैद है, आसान नहीं था उनको ये चीज हजम करना, यानी बर्दाश्त करना। साहबा ने अबू बकर सिद्दीक को खबर दी, ये अबू बकर ऐसा मामला है, तो चलिए रसूल अकरम इंतकाल भी कर गए हैं और उमर फारूक का ये रवैया है। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल और अपने आप को काबू में रखना हम सहाबा से सीखते हैं। हज़रत उमर फारूक को अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी तो अबू बकर सिद्दीक को भी थी। उनका मकाम उमर फारूक से बड़ा है। ये एक दूध की घड़ी थी, फौरन दौड़े दौड़े कहाँ चले गए? अपनी बेटी के हुजरा में। उन्हीं की बेटी का नाम आयशा सिद्दीका है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल किए उसी हुजरे में इंतकाल की। कहता आयशा सिद्दीका के पास थी। सबसे पहले अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक वहाँ गए। तो देखिए कब आदमी, जब क्या होता है कि हदीस के अंदर है कि जब आदमी की रूह निकलती है तो आंखें उसका पीछा करती है। तो आप देखेंगे आंख तो थोड़ी गिरा जाती है, थोड़ी बहुत, फिर उसको बंद किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही था। अबू बकर सिद्दीक गए और से आंखों को बंद किया।
और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको 2 मौतें नहीं दे सकता। जुमला तो अबू बकर सिद्दीक का सही बुखारी खुतबा मौजूद है। कसम अल्लाह की है मोहम्मद, आपको अल्लाह 2 मौत नहीं दे सकता। मौत तो एक ही होती है, जो आपकी रूह निकल चुकी है, आप पीछा कर रहे होंगे आंख से, इसीलिए आंख को बंद करके बोले वही एक मौत है, और कोई दूसरी मौत नहीं होती। उसके बाद मस्जिद नबवी के अंदर गए, आपके पेशानी को बोसा भी लिया अबू बकर सिद्दीक ने, फिर मस्जिद नबवी के अंदर गए और सहाबा को फरमान दिया कि सब यहाँ पे जमा हो। तमाम सहाबा आए, उमर फारूक किया, और उसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन खुतबा भी दिया, बहुत मुख्तसर खुतबा है और सही बुखारी में बड़े तफसील से बयान किया, मैंने मुख्तसर बयान कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मन कान याबुदु मुहम्मदन, तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, फइन्ना मुहम्मद यमूत, तो मोहम्मद मर चुका, मोहम्मद मर चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया माता यमूत का, फइन्ना मुहम्मदन यमूत, मोहम्मद मर चुके हैं, पर्दा नहीं फरमाया। याद रखें ग्रामर, आप उसको सर्च करें गूगल पे के अरबी में माता यमूतों के माना क्या होता है, हम लोग उर्दू में उसको मौत हो, फइन्ना मुहम्मद यमूत वमन कान याबुदुल्लाह, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता है, फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, बेशक अल्लाह जिंदा है, उसे मौत नहीं है। कितनी बेहतरीन बात बयान किया अबू बकर सिद्दीक ने। अब उसके बाद ये आयत करीमा पढ़ें, यही आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन कब्लिही रसूल, मोहम्मद नहीं तो रसूल थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल आए दुनिया में और इंतकाल कर गए। अफा इन माता, अगर वो मर जाए, और कुतिला, या शहीद कर दिए जाए, इन गलत मुलाकाबेकुम, तो क्या तुम अपनी पीढ़ियों को पलट जाओगे। ये इशारा था उमर फारूक और उनके समय उन जैसे सहाबा की तरफ, इस तरह की हरकत कर रहे थे। जब ये आयत करीमा उमर अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, तो उमर के हाथ से तलवार गिर गई। हजरत फारूक ने कहा कि मैंने कई बार कुरान को पढ़ा, कई बार अल्लाह के नबी की जिंदगी में मैंने कुरान को पढ़ा, लेकिन आज अबू बकर सिद्दीक जब इस आयत को पढ़ रहे थे, वहां मोहम्मद इब्न रसूल लग रहा है कि आज ही उतर, आज ही उतर। ये आयत करीमा को अबू बकर सिद्दीक ने उस दिन पढ़ा जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। अल्लाह ने यहाँ तो इस्तेमाल किया, अफा इमाता और कुतिला, अगर मोहम्मद मर जाए, तो ये हम लोगों के लिए भी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात कर गए हैं, है ना, हम लोगों की जब पैदाइश हुई है, अल्लाह के नबी की वफात के बाद ही ना हुई पैदाइश, तो क्या हम पलट जाए अपनी एडियो के बल, जब नबी है ही नहीं तो कहा इस्लाम कबूल करें। ये हम लोगों के लिए वैसे, तो जब नबी है नहीं तो हम फिर क्यों कुरान को माने, फिर क्यों अल्लाह को माने। अल्लाह ये आयत हम हमारे ऊपर फिट हो जाए, अपा इमाता और कुतिला, क्या अगर वो गुजर जाए, इंतकाल फरमा जाए और इस तरीके शहीद कर दिया, तो क्या तुम तुम अला अकाबिकुम, तो क्या तुम अपने एडियो के बल पलट जाओगे। क्या हुआ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है, उनकी तालीमात तो है, और उन्होंने मर्दुल मौत में कहा था ये बात, तरफ तो फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। गर्चे हम लोग उस जमाने में नहीं थे, लेकिन उनकी मैसेज आज हम लोग तक पहुंच गई। वफात तक की आज से 1500 साल पहले, लेकिन मैसेज है कि हमारे नबी ने हम लोगों से क्या कहा था। ये कहा था कि तरफ्तु फीकुम अमरैन, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम हर चीज गुमराह नहीं होगे जब तक उसको मजबूती थामे रहोगे, कोई गुमराह नहीं कर सकता। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब एक है, सुन्नती और मेरी सुन्नत यानी सही हदीस। जाहिर सी बात है, अगर कुरान और हदीस को हम पकड़े रहेंगे तो हम कभी गुमराह नहीं हो सकते, इसको छोड़ने ही की वजह से हम गुमराह। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 145 में बयान किया 145, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी भी नफ्स के लिए जायज नहीं है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर मर जाए, यानी मौत भी अल्लाह की इजाजत से होती है। समझ गए, ये दलील है कि हमारी मौत नहीं कोई बोलता है तुमको टपका देंगे, तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे, उसके हाथ में है ही, वो तो फेंक रहा है, हाज रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी भी मौत नफ्स के लिए नहीं है मगर ये कि जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो उसे मौत नहीं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, इंसान नहीं। इंसान के सोचने से क्या होगा, उसके बोलने से क्या होगा। हयात अल्लाह ने बख्शी, दुनिया में हमें कब जाना है किसने डिसाइड किया, अल्लाह ने। दुनिया से कब जाना है ये भी अल्लाह ही डिसाइड कर चुका है, लोहे महफूज में लिखा जा चुका हम लोगों की तकदीर है ना। तो मौत और जिंदगी का मालिक जब अल्लाह है तो डर अल्लाह ही से, हम अल्लाह ही डरना चाहिए। कितनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। आगे ये भी अल्लाह का किताब मुअज्जलन, मौत का वक्त मुकर्रर, मौत का वक्त मुकर्रर है।
इसीलिए जो अंग्रेजों की जो चाल चलन है, तौर तरीके हैं, बर्थडे मनाना, क्यों उलमा इसकी मुखालफत करते हैं? ये आयत करीमा की वजह से। हम में से एक आदमी की उम्र 60 साल है, 25 साल तो घट गए, कितना बचे? 35। तो हम खुश होकर केक काटते हैं जब हम मरने वाले हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, मरने वाले हैं, खुशी की बात है। सोचे, लॉजिक तलाश करें। सबका वक्त किताबन मुअज्जलन, अल्लाह ने कहा कि वक्त मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है। सोचे, वमन युरिद सवाब दुनिया नुतिहि मिनहा, अब उसमें से यानी जिसको हमने पैदा किया दुनिया में, वमन युरिद सवाब दुनिया का सवाब चाहता है, नुतिहि मिनहा, उसमें से उसको दे देते। आगे अल्लाह ने कहा वमन युरिद सवाब आखिरती, और जो कोई आखिरत का सवाब चाहता है, नुतिहि मिनहा, उसको भी दे देते हैं। तो सनजज़ि शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदे को हम बदला देते हैं। यहाँ एक बेहतरीन बात अल्लाह ने बयान की। हम लोग तो देर एक बात रहता है ना, देखो नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, नाम का मुसलमान, बड़ी फरावानी है, बिल्डिंग है, कमा रहा है, कर रहा है ना, सोचते रहा इंसान है, सोचते रहते हैं हम इतनी इबादत कर रहे, इतनी परेशान, इतनी कर्ज में डूबे हुए, ये परेशानी, बच्चा बीमार, बीवी बीमार, बीमार, ये ऑपरेशन, ये वो, कितनी सारी परेशानी लगी। और उसको देखो, ना मस्जिद से ताल्लुक है, ना दिन से ताल्लुक है, ना किसी चीज से ताल्लुक है, लेकिन उसकी फरमानी देखो, खुशहाली देखो। अल्लाह कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं, तो घबराओ मत। वो दुनिया चाह रहा था तो उसको दुनिया दे, यदि सवाब दुनिया नुती है मिनहा, जो दुनिया चाहता है हम उसको दे देंगे। वो एक बंगला मांगेगा हम 4 बंगला देंगे, वो एक गाड़ी मांगेगा हम 4 गाड़ी देंगे, वो सऊदी और दुबई जाना चाहेगा अमेरिका भेज देंगे उसको। वो दुनिया वही उसकी जन्नत है। ये मुसलमानों की बात हो रही है, गैरों की नहीं। ये मुसलमान दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया के लिए मर रहे हैं, दिन रात दुनिया दुनिया है, पैसा है दुनिया। अल्लाह यहाँ साफ साफ कह रहा हूँ, मैं युरिद सवाब दुनिया नुती है मिनहा, जो दुनिया की जिंदगी चाहता है, सवाब चाहता है, हम उसे दुनिया देंगे। लो भाई तुम्हारे लिए यहीं पर है, वहां कुछ नहीं, यहीं पे ले लो, आराम कर लो। हाँ, जो आखिरत चाहता है तो वो है ना कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मोमिन की जिंदगी हमेशा आजमाइश में। क्यों अल्लाह आजमाता है? हदीस भरी पड़ी इन चीजों से। हमारे पास मान लीजिए हम लोग मोमिन है, हकीकत ये है अल्हम्दुलिल्लाह लोग मोमिन है, अब हमें जन्नत में जाना है, लेकिन अल्लाह जानता है कि कोई गुनाह हम लोगों ने किया। अल्लाह देख रहा है कि मर कर आएगा तो सवाब भी है और गुनाह भी है, और ये मोमिन है, डरता है मुझसे, तो अल्लाह क्या करेगा, उस गुनाह को मिटाने के लिए दुनिया में परेशानी इस तरह दुनिया ही के परेशान हो जाए। यहाँ कहा है वो परेशान हो गए, यहाँ आओ मेरे पास जन्नत में जाओ, तो अल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबत देगा। हम घबरा जाते हैं मुसीबतों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जरिए क्या, गुनाह को माफ कर देता है। एक मोमिन को कांटा चुभे, यहाँ तो दुख और मुसीबत की बात हो रही है। और याद रखिए कि एक होता है खुतबे में मुसीबत का जिक्र करना, और एक होता है प्रैक्टिकल उसके साथ वो हादसा होना, दोनों बहुत फर्क है। अल्लाह ना करे किसी का कोई बड़ी मुसीबत आए, जब मुसीबत खुद पे आती है तो पता चलता है कि हाँ, जो अल्फाज हम बार बार बोल रहे थे, मुसलमानों को समझा रहे थे, हकीकत में आसान नहीं। मुसीबत पे सब्र करना हकीकत में आसान, बहुत मुश्किल। इसलिए अल्लाह ने अजर बहुत रखा है, अजर बहुत बड़ा बड़ा रखा है। तो इस तरह कभी ना सोचे कि देखिए वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता, वो उतना अमल भी नहीं करता सुन्नत के मुताबिक, देखिए उसके पास कितनी चीजें हैं। अल्लाह कह रहा है दुनिया 4 सब दे दी। अरे एक तुम अगर 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, यहीं पे लो, वहां नहीं मिलेगा। और जो आखिरत चाहेगा तो अल्लाह देखिएगा कि उसके हिस्से में कुछ गुनाह है, और हमको तो इंसाफ करना है आखिरत के दिन, अदल करना। ऐसा तो होगा कि हम अपनी मर्जी से किसी को हम दाखिल कर दे, नहीं, अल्लाह इंसाफ के पैमाने को कायम रखेगा ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके। ऐसा ये तो भेदभाव हो रहा है, उसको चाहे जन्नत में, चाहे जन्नत जहन्नम भी कैसे। तो अल्लाह क्या करेगा, जिस मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है, मोहब्बत कैसे करेगा, जब मोमिन बंदा दिन रात दिन के काम में लगा है, उसका उठना अल्लाह के लिए, उसका सोना अल्लाह के लिए, उसका चलना अल्लाह के लिए, उसका बैठना अल्लाह के लिए, उसका खाना अल्लाह के लिए, हर चीज अल्लाह के लिए कर रहा है। अल्लाह को हमेशा सामने रख रहा है कि ये काम करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, नहीं चाहे हमारा नुकसान क्यों, नुकसान मंजूर है लेकिन काम है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है कि इसके पास दुनिया हासिल करने का रास्ता है, कर सकता है, नहीं करता तो अल्लाह क्या करेगा, देखिए कुछ गुनाह बचा हुआ है, मरने के बाद परेशानी में हो जाएगा, चलो कोई बड़ी मुसीबत दे दो, बड़ी मुसीबत तुम वहीं झेल लो बाबू, वहीं परेशान हो जाओ, यहाँ आओगे जन्नत मिलेगी। उन्होंने कहा सवाब आखिरता नुतीहि मिनहा, और जो आखिरत का सवाब चाहता है हम उसको उससे दे देते हैं। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, शाकिर का लफ्ज़ इसलिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि एक मोमिन खुशी हो या गम अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये पहचान है मोमिन की, याद रखिए। मोमिन उकताता नहीं है, मोमिन घबराता नहीं है,
मोमिन तान तशरी नहीं करता, लान तान नहीं करता, इस तरीके से चीख पुकार नहीं करता। मोमिन अपने रब के हर फैसले पर लबैक कहता है। अल्लाह तेरी मर्जी थी, तू बेहतर जानता है, मुझे नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि हम शुक्रगुजार बंदे को बदला देते हैं। आज का दर्स यहीं तक है। इसमें कोई अगर सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल कौन सा अजान की बात करते हैं? अजान बस हाँ, होने बस 2 2 मिनट मिनट 2 मिनट अजान हम बोल दें बोल दीजिए। अजान होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अजान के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सवाल आए रसूल और नबी में क्या है? सवाल ये कि नबी और रसूल में क्या फर्क है। नबी उसको कहते हैं, रसूल एक शरीयत लेकर आते हैं। रसूल को एक शरीयत देकर दी जाती है, नबी उसी शरीयत को आगे बढ़ाते हैं। फिर जब रसूल आएंगे उनको एक नई शरीयत देकर दी जाएगी। रसूल एक नई शरीयत लेकर आएंगे और उस दरमियान अगर नबी आ रहे हैं तो उसी शरीयत को आगे बढ़ाएंगे। रसूल जब आएंगे एक नई शरीयत लेकर आएंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, रसूल भी। आपको एक शरीयत देकर भेजी गई, शरीयत इस्लाम में जिसको उनसे पहले कौन सी शरीयत थी जो मूसा बनी इस्राइल का जो था वो लेकर आए। ये बेसिक बात है। जैसा अपने दर्स में फरमाया कि अल्लाह मैंने कुछ गुनाह करके तो उनको आजमाते हैं। हमारे मुआशरे में एक अमूमन एक चीज़ है, कोई इंसान अगर बेड रिटन रहता है काफ़ी दिनों तक, बीमार है, इंतकाल मैंने वो, तो उसको लोग ये मतलब बुरा एक ये नहीं कि सवाल ये कि जैसे भी दर्स में बात गुजर चुका है कि अल्लाह ताला नेक बंदू क्या करता है, उनके कुछ गुनाहों की वजह से कि आप मरने के बाद गुनाह है, अब जन्नत का मामला है कि जहन्नम का मामला, तो उस गुनाह को खत्म करने के लिए इब्तिला वो आजमाइश में डालता है। हमारे माशरे में क्या है कि अगर कोई बीमार हो जाए, ऐसी बीमारी नहीं है, देखिए कि अगर कोई आदमी हलाल कमाई कमा रहा है और हलाल कमाई से आगे बढ़ गया और अचानक बैकफुट पे आ गया तो फौरन एक राय कायम कर लेते हैं वो हराम का कमाई था इसीलिए खराब है। किसी बीमारी को मामला नहीं, हर चीज में एक राय हम कायम कर लेते हैं कि उसका पैसा इसलिए तबाह हो गया, इसीलिए वो अपाहिज हो गया क्योंकि हमको पता चला, सुने थे कि ऐसा कुछ मामला था गड़बड़। अपने से अपने दिल को तस्कीन के लिए ऐसी कोई बात नहीं। देखिए लोगों के अमाल से अल्लाह के अलावा कोई बाखबर नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, एक मोमिन पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है। अगर कोई बीमार है तो किसी के पास परेशानी दो वजह से आती है। एक वजह होती है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जो मुसीबत तुम्हारे पास आ रही तुम्हारे हाथों की करतूत है। वमा असाबकुम मिन मुसीबती, जो भी मुसीबत तुमको पहुंच रही है ये तुम्हारे हाथों की करतूत है। यानी जो गुनाह हम करते हैं तो गुनाह की वजह से मुसीबत में फंसते हैं, इसीलिए गुनाह काम नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि गुनाह काम मत करो? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काम जो गुनाह का हो रहा है वो क्रिएट करता है मुसीबत, जन्म देता है। तो एक इस वजह से कोई परेशान होता है, और अगर कोई आदमी गुनहगार नहीं माशाल्लाह अल्लाह वाला है और वो मुसीबत में है तो उसकी आजमाइश होगी। दो ही चीज़ है। अब वो आजमाइश क्या है, गुनाह को मिटाने के लिए अल्लाह आजमा रहा है, उसके पास कुछ गुनाह है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह चाहता है कि इंसाफ तो हर हाल में करना है, तो उसको जो गुनाह किया उसकी सजा आजमाइश के तौर पर दुनिया में देगी। इसी तरीके से किसी के बारे में राय कायम करना कि इतना भी बीमार इसलिए है कि बहुत गुनहगार है, इस वजह से वो बीमार है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं। हमें हमेशा किसी के बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो उसकी बुराई बयान न करो, उसकी अच्छाई बयान करो, क्योंकि जो बुराई तो कर चुका, हिसाब किताब उसका बंद हो गया, खत्म हो गया, अब बोलने से कोई फायदा नहीं। और हमेशा मुर्दे के ताल्लुक से अच्छी बात होनी चाहिए, उसकी नेकियों को बोलना चाहिए। हो सकता है बोलने को अल्लाह ताला से गुनाहों को मिटा दे, नेकी को इसको जन्नत में दे दे। हम तो चाहेंगे कि हम उसका हिस्सा बने, कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे और जो भी हमारे मरहूमीन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। इस पे एक और सवाल है मतलब जैसे कि कोई बेड पे अगर रहते हैं, बीमार पड़े हुए काफी दिन से, तो बहुत सी तकलीफ होती है, जैसे कि वॉशरूम बाथरूम नहीं कर पाना, बहुत से ऐसा होता है खाना पीने में दिक्कत होना, पेन हो रहा है, लेकिन उनका वक्त अभी नहीं हुआ है, तो
कई मतलब हम अक्सर खवातीन में ये चीज देखे बोलते हैं कि अल्लाह उठा ले इससे अच्छे रखी इससे अच्छा, तो ये सेंटेंस कैसा है? वो डायरेक्टली बोलते हैं कि अल्लाह इससे अच्छा उठा ले, मौत दे। देखिए सवाल ये कि बहुत से आदमी बिस्तर पर मतलब मर्द हो जाते हैं, जिसको बिस्तर पर मर्द होते हैं, ऐसी बीमारी हो गई कि खुद से बाथरूम में नहीं जा सकते, खुद से खा नहीं सकते, खुद से पी नहीं सकते, और दर्द वगैरह इस कदर रहता है कि घर ही वाले कहते हैं कि अल्लाह उठा ले। देखिए ये जो घर वाले जो कह रहे हैं कि अल्लाह उठा ले, ये परेशानी क्या लगे कह रहे, उतरना उनको है, उनको करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत सारी दुआएं मांगते थे, उनकी बहुत सारी दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि अल्लाह मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से तेरी पनाह मांगता हूं। क्यों ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे? कि वो जानते थे कि ये बुढ़ापे में इंसान लाचार होता है, मजबूर हो जाता है, यानी बच्चे की तरह हो जाता है, बिस्तर पर पेशाब कर देना, बिस्तर पर पखाना कर देना, और बहुत कम ही ऐसे फर्माबरदार बेटे बेटियां हैं जो इसको बाइसे अज्र समझ के करती है खिदमत, वरना ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने मैड को रख दिया है, माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पर पेशाब पखाना हो रहा है तो मैड को तनख्वाह पे रख दिया है, 5,000 से कर लीजिए और आप ही को पेशाब पखाना साफ करना है। और किस्मत औलाद है, अल्लाह उनको भी औलाद दिया हुआ है, वही दुनिया में देखेंगे कि वो दुनिया मौका पाती अमल है, तो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, ये तो कंफर्म है, उसमें डाउट नहीं। तो ये चीजें कहना सही नहीं कि अल्लाह उठा ले। सवाल की जुमला कहता कौन है? ये कहता वो है तो करते करते थक गया। हमारे माँ बाप भी तो हमको बहुत किए हैं, हम लोग पैदा हुए चलना सीखते हैं 1.5-2 साल में, है ना? इसी तरीके से पेशाब पखाना करते हैं तो खुद से साफ करना कब सीखते हैं? 4-5 साल में। 4-5 साल में माँ बाप नहीं उठता है, हम 2 महीने में उठता है, उठने वाली बात है। तो ये जुमला नहीं कहना चाहिए, बल्कि मौत के बारे में अल्लाह के नबी से दुआ सिखलाई है, तो साबित है कि अल्लाह जिंदगी अगर हमारे लिए जब तक बेहतर है तो हयात दे, और जब तुझे लगे कि नहीं ये हमारी जिंदगी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, बेहतर नहीं मेरे हक में, तो तू मौत दे दे। मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए कि अल्लाह बहुत परेशान है हमको मौत दे दे, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई घर वाले बात कह रहे हैं तो नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बात, बल्कि आपको अल्लाह ने मौका दिया अपने माँ की खिदमत करने का, जन्नत बनाने का। वह एक साहबी गए, जंग का मौका था कि अल्लाह के नबी मैं भी जिहाद में चलूंगा। अल्लाह रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई एक है? उन्होंने कहा है, जाओ उनकी खिदमत करो, यही जिहाद, जाओ उनकी खिदमत करो, यही जिहाद है। तो माँ बाप अगर लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, उम्रदराज हो जाए और पेशाब पखाना बिस्तर पर कर दे, तो ये उकताने की नहीं, एक मुसलमान के लिए, एक अच्छे और सच्चे बेटे के लिए वो खुशी की बात है कि अल्लाह तुमने मौका मुझे दिया, माँ बाप की खिदमत कर जन्नत ले लीजिए। एक गुनाह के ताल्लुक जैसे आपने बताया कि हमारे करतूतों का अमल है, एक तफसीर ये भी पढ़ रहे थे कि आज़ाब तो आते ही है, लेकिन उस गुनाह की नफरत से अल्लाह इल्म का कुछ हिस्सा बुला देते हैं इंसान से। तो ये मतलब सवाल समझ में आया? जब हम लोग गुनाह करते हैं, तो आपने बताया कि इंसान जो गुनाह करता है उसके असर मतलब उसके उसी पर पड़ता है, ठीक है, कुछ अल्लाह मुसीबत डालती है, परेशानी डालती है उस चीज़ में, लेकिन उसके अलावा तफसीलें पढ़ रहा था कि उसकी नहुसत से, गुनाह की नहुसत से अल्लाह इल्म का कुछ हिस्सा बुला देते हैं इंसान को। देखिए गुनाहों के बहुत नुकसान हैं। आपका जो सवाल है अच्छा सवाल है, जैसे दर्द की बात गुजर चुकी कि जो गुनाह रहता है तो अल्लाह उस गुनाह की वजह से उसको मुसीबत में डाल देता है ना? उमा असाबुकुम मुसीबतीन बिमा कसबत अयदीन नास, जो मुसीबत तुमको पहुंच गई तुम्हारे हाथों की करती है, जो गुनाह कर रहा है उसकी वजह से मुसीबत आ रही है, या तो अल्लाह आजमा रहा है ना? यहाँ पे जो सवाल है कि अल्लाह गुनाह की वजह से इल्म को भी हाइड करके छुपा देता है, तो जो इल्म उसके अंदर है उसको अल्लाह बुला देता है, इल्म लाते हुए वो बेइल्म हो जाता है। तो गुनाह के तो बहुत नुकसान है, ये एक नहीं कई, अल्लाह कुछ भी उसकी जगह कर सकता है। गुनाह के बहुत सारे नुकसान हैं, इसीलिए गुनाह नहीं करना चाहिए। सिर्फ लेने की बात नहीं, गुनाह की वजह से रोजी में बरकत नहीं होती, ये भी एक नुकसान है। रोजी जो एक अहम चीज है, रुपया पैसा आदमी क्यों कमाता है? घर में ताकि हमारा राशन आ जाए, सारे सामान आ जाए, बीमार हो तो दवा हो जाए, डॉक्टर देख ले। अगर हम गुनाह करेंगे तो अल्लाह रिस्क में बरकत छीन लेगा। पैसा 1 लाख मंथली कमाएंगे, बचेगा 0, वो भी कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी परेशानी अल्लाह दे देगा कि 1 लाख 1,000 के बराबर हो जाएगा। तो गुनाह के बहुत सारे नुकसान है, उसमें इल्म को भी है कि अल्लाह खत्म कर देता है, छुपा देता है, इसमें बरकत जो है वो अल्लाह ताला गुनाह हटा देता है, सेहत नहीं देगा, तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, बीमार रहेंगे, सिर्फ बहुत सारे नुकसान है गुनाह के। ये जो आखिरी सवाल हम लोग के माशरे अच्छा ठीक, हम लोग के माशरे में क्या है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, काम करने के लिए घर में आदमी नहीं है, लड़के की शादी करा दी, तो माँ बाप का खिदमत करना किस पे ये है, लड़के पे है या बहू पे है? माँ बाप बूढ़े हो गए तो क्या अमूमन ये होता है ना माशरे में कि माँ बाप अब बूढ़े हो गए, घर में काम करने के लिए कोई नहीं है, तो लड़के की शादी करा दी। हाँ,
तो माँ बाप की खिदमत लड़के पे फर्ज है या बहू पे? सवाल ये है कि जैसे आमतौर पे क्या होता है कि माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं, बुढ़ाई की उम्र है लेकिन बीमार बहुत रहते हैं, माँ नहीं कर पाती है, लड़का जवान है तो शादी कर दी जाती है कि बहू आ जाएगी तो घर के काम काज संभाल लेगी। तो सवाल ये कि खिदमत किसके ऊपर फर्ज है, औलाद के ऊपर है कि बहू के ऊपर? देखिए सवाल के अंदर ही जवाब है और ये बहुत मुश्किल तरीन सवाल नहीं है। इसके बारे में जैसे मदारिस में क्या होता है, मदरसा में 2 सेक्शन होता है, एक बॉयज का होता है, एक गर्ल्स का होता है। बॉयज जो पढ़ के निकलते हैं तो आलिम कहलाते हैं और लड़कियां पढ़ के जब निकलती है आलिम तो आलिमा कहलाती है। आपका सवाल तो उर्फ आम में जो समाज में हो रहा है उसके ताल्लुक से, लेकिन मैं आलिमा की बात बता दूं। आलिमा की जब शादी कर रही है, एक लड़की आलिमा बन जा रही है, 10 साल पढ़ रही है, मदरसे के अंदर बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, तफसीर सब फिक़ह सब पढ़ रही है, और वो भी जब शादी कर रही है तो अपने हस्बैंड से कह रही है कि आपको हदीस नहीं मालूम कि आपके माँ बाप है, आपके ऊपर खिदमत है, हमारे ऊपर नहीं है, हम तो बहू है, हम बेटी है ना बेटा है, आपको हदीस नहीं मालूम। ये इस तरह की बात अगर आम आदमी कहने तो चलता है, लेकिन आलिमा लड़की कहती है, कह रही है, और कितने आलिमा लड़की इस तरह की हरकत करके तलाक याफ्ता भी हो गई कि नहीं, आपके पिताजी है, आपकी माता है, आप उसकी खिदमत कीजिए, हम तो बहू है, हम क्यों करें। और वही लड़की अपने नैहर में जाती है तो भाभी से कहती है हम जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अम्मी का, वही लड़की वहां पे उसका फॉर्मूला बदल जाता है। उसकी जो भाभी है वो भी तो उसकी बेटी नहीं है, उसके माँ बाप की, तो अपने भाभी को बोल के आती है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम नहीं रखेंगे, ये हदीस मेरे लिए स्पेशल है। देखिए बात दरअसल ये है कि खिदमत खल्क बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अपने बाप के दोस्तों की इज्जत करो वैसे इसको अपने बाप की इज्जत करो। क्या मतलब समझे, हमारे अब्बू के जो दोस्त वगैरह है, आप लोगों के जो अब्बू है उनके दोस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कहना पड़ा कि अपने बाप की दोस्तों की वैसी इज्जत करो जैसा कि तुम अपने बाप की इज्जत करते हो, क्यों कहा लगे? ये एक ताल्लुकात है। बहू घरची उस घर की बेटी नहीं है, हकीकत है बहू है, लेकिन उस शौहर की खिदमत में ये भी शामिल है कि हमारे शौहर के माँ बाप हैं। अच्छा, शौहर की जो औलाद उसकी खिदमत क्यों करती है ना? औलाद उसी लड़की से पैदा नहीं हुआ, दोनों के मिलाप से पैदा हुआ, जितना लड़की का उतना लड़के का है, तो उसका शौहर भी जितना बीवी का उतना अपने माँ का है कि नहीं है? तो शौहर के बच्चे की खिदमत आप करें अपना बेटा समझ के, और शौहर की जब माँ की बात है तो बोले कि सास है, तो गलत है, शरीर का कानून नहीं है ऐसा, लॉजिक में बतला रहा है, क्यों नहीं करेंगे? तो करनी चाहिए। जहां तक सवाल है फर्ज का, तो वालिदैन के हुकूक में क्या है? वालिदैन के हुकूक में बेटा ही को बयान किया गया है, बेटी के बारे में बयान किया गया है, लेकिन बहू का किरदार बहुत अहम है। अगर वो अपनी सास की खिदमत करेंगे तो अल्लाह उनको बेटा देगा, तो उनकी बहू उनकी खिदमत करेगी, सीधी सी बात है। नहीं तो लड़की एक एग्रीमेंट करें कि मेरी भी बहू आएगी तो मुझको नहीं पूछेगी, क्योंकि मैं अपनी सास को नहीं देख रही, मेरे ऊपर खिदमत वाजिब नहीं है, तो मेरे बहू के ऊपर कैसे वाजिब हो जाए? चलिए कैसे बदल जाएगी 20 साल में, है कि नहीं? किसी पे अगर कोई बहू हदीस को कोट करके और वो नहीं करती है तो उसके ऊपर गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है। अगर कोई लड़की इसको कोट करती है और दलील देती है कि नहीं, कोई लड़की पहले एग्रीमेंट करे, कोर्ट के पेपर पे साइन करे, उसे करवाइए, अगर तुम सही हो तो साइन करो, तो मेरी भी बहू आएगी तो मुझको नहीं पूछेगी, तो उसका हदीस का कोर्ट सब भूल जाएगी, गुनाहगार हो। नहीं करे तो दूसरा ले आओ। दूसरा नहीं करे तो दूसरा ले आओ। ये एक तरीका है, आप भी एक्शन लेने की कोशिश करें, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी के लिए है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा। आपको कुछ कहने की बात समझ हो रहा है कि इमाम साहब जैसे अभी बताया कि नहीं, जैसे हम लोग कुछ अमाल करते हैं या इंसान से कुछ भी गलती खता जिंदगी में होता है तो उस तरह से फिर उसका अमाल का असर पड़ता है, लेकिन इस बीच में तो अल्लाह ताला जो बीच में तौबा का जो कॉन्सेप्ट दिए है, तौबा से ऐसा होता है कि अल्लाह उसको सब गुनाह माफ़ भी कर देते हैं, और ऐसा भी होता है कि उसका गुनाह को अल्लाह नेकी में भी बदल देता है। तो थोड़ा इस बारे में देखिए सवाल ये कि अभी जो दर्स में गुजरा कि अगर इंसान के पास मुसीबत आती है तो उसको हाथ में कट्टू, तो कुरान की आयत भी वहाँ आसान मुसीबत की दिमाग का सबब आई दिन ना, या अल्लाह आजमाता है। इनका सवाल अच्छा है कि ये भी तो आयत है कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके तौबे की बरकत की वजह से सारे गुनाह को माफ कर देता है, तो फिर उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो सिंपल सी बात है, आप तौबा कर लिए, जैसे हम हैं, हम गुनहगार थे, तौबा कर लेंगे, उसके बाद भी मुसीबत आ रही है तो उसको आजमाइश मानिए, अल्लाह आजमा रहा है। या हो सकता है कि अमाल दर्जात बुलंद करने के लिए बिल्कुल भी है।
तो आजमाइशी अगर मान लीजिए सारी चीज में आ जाएगी कि अल्लाह को इसलिए आजमा रहा है ताकि हमें हमारे लिए आखिरत में इससे बेहतर तैयार करके रखा है। ठीक है, तौबा का सही बात है, तौबा करने से सारे गुनाह माफ हो जाए, लेकिन इसमें एक ये भी बात ये है कि तौबा करने के बाद हम बिल्कुल 100% सही है, इसकी गारंटी कैसे होगा कि हम तो तौबा कर लिए, अब उसके बाद हम 100% हम दुरुस्त है, ये इसकी गारंटी कौन है? अब ये हम दलील दिए उस्मान गनी की, उमर फारूक की, ये लोग प्योर थे, श्योर भी थे और प्योर भी थे, फिर भी रोते थे। हुज़ैफा बताओ कि क्या मेरा नाम भी मुनाफिकों में है? इतने बड़े दर्जात और उनकी फजीलत इतनी है हदीस के अंदर। तो तौबा कर लिया, अल्लाह तौबा से माफ कर देता है। अब उसके बाद आजमाइश आ रही है तो ये समझे अल्लाह आजमा रहा है, मोमिन की जिंदगी आजमाइश है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तो हम तमाम लोगों के हाथ में कबूल फरमाए, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और जो भी हमारी परेशानी परवरदिगार तू जानता है तो हमें उन परेशानी से निजात दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।